Very warm welcome to session number 3 of chapter 4 of Science and CRT for class 9th. I'll share the screen. So in the last sessions, we had discussed about the atomic models given by Thomson, then Rutherford, Bohr, and in a very small exercise, we also talked about neutrons. Now, neutrons are the third subatomic particles, charged subatomic particles, which were discovered by Chadwick in 1932, and it was denoted by small n. It had no charge, it was neutral. And Chadwick found out that neutrons are present in all atoms except hydrogen. And based on the discovery of neutrons, Chadwick said that atomic mass of the atom resides in protons and neutrons. We had already talked about the weight mass of protons, that they are 2000 times heavier than electrons, right? And electrons have negligible mass. If electrons have negligible mass, that means the mass of the atom is dependent upon protons and neutrons. So here I have given a simple equation which can be used, which we solved in session 2, a very small question to find out the number of neutrons of in helium atom. So we use this formula. Now we will talk about distribution of electrons in different orbits. If you remember, in session 1, we talked about Rutherford nuclear model of atom, wherein we learned that all the mass of the atom resides in a very small area, which is the diameter of which is very small than the diameter of atom, right? So it was 10 to the power 5 times smaller in radius. Okay, so Rutherford said that electrons revolve around the nucleus in circular shells called as orbits, but this particular assumption was dropped, was found out to be faulty, because if electrons were supposed to revolve around the nucleus in circular shells, then they will keep on losing energy and ultimately they will collapse into the nucleus, leading to the collapse of the atom. That means it will make the atom highly unstable. But on the contrary, we all know that atom is a highly stable entity. एटम की स्टेबिलिटी के कारण ही हमें मैटर जो है डिफरेंट स्टेट्स में दिखाई देता है. तो रदरफोर्ड के इस अजम्पशन को नहीं माना जा सकता था. रादर उनके बाद में बोर नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि कुछ डिस्क्रीट शेल्स होते हैं, वो उनके अंदर जब एटम इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता. तो ये बोर और बरी साइंटिस्टों की जोड़ी ने ये सजेस्ट किया था. फिर उन्होंने रूल्स दिए कि जो कितने नंबर ऑफ डिफरेंट जो है एनर्जी लेवल्स पे कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला दिया उन्होंने, 2 मल्टीप्लाई बाय n टू द पावर 2. अब यहाँ पर n क्या है? n जो है ऑर्बिट का नंबर है या एनर्जी लेवल का नंबर है. आपको याद होगा पिछले फर्स्ट सेशन में हमने कहा कि जो बोर ने जो डिस्क्रीट एनर्जी शेल्स की बात की, उनको या तो KLMNOP से दिखा सकते हैं या 1 2 3 4 5 6 से दिखा सकते हैं. ठीक है, तो अब अगर आप मान लीजिए पहली शेल की बात करें, K की बात करें, तो K का नंबर होता है 1, तो 1 टू द पावर 2 तो 1 नहीं होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होगा. तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे. दूसरी का n की जगह 2 रखें तो 2 टू द पावर 2 मतलब 4 हो गया. 4 इंटू 2 8 हो गया. तो इस तरह से आप करके पहले लेवल में, दूसरे एनर्जी लेवल में, तीसरे एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते पाए जाएंगे ये आप निकाल सकते हैं. ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि KLMN शेल्स में प्रेजेंट होंगे, दे कैन बी कैलकुलेटेड एज
K में 2 आएगा, L में 8 आएगा, M में 18 आएगा और N में 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं। फिर एक बात बोर ने और कही कि जो सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहेगी किसी भी एटम, तो उसमें जो है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये जो बाहर की शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दिया गया, और यानी सबसे बाहर वाली में 8 ही होंगे, और शेल्स जो है स्टेप वाइज में ऑर्डर में भरी जाती है। ऐसा नहीं है कि पहले जंप करके इलेक्ट्रॉन सीधा एन में चले जाएंगे ना, पहले के भरेगी, फिर एल भरेगी, फिर एम भरेगी, फिर एन भरेगी। ठीक है, स्टेप वाइज मैनर में ही शेल्स जो है भरती हैं। फिर हम बात करेंगे वैलेंसी की। आपको याद होगा जब हमने केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखा था पिछले चैप्टर्स में, तो हमने कहा था कि केमिकल फॉर्मूला से दो चीजें हमें पता चलती हैं। एक तो हमें पता चलती है कंपोजिशन, कि कौन कौन से एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर हैं, और दूसरा हमें उन दोनों जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी क्या है, ना कि उसकी वैलेंसी क्या है। ठीक है, यानी वैलेंसी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर वैलेंसी का जिक्र दोबारा इसलिए आया है क्योंकि अब हमने नया बोर का जो एटॉमिक मॉडल पढ़ा कि जो है डिस्क्रीट एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और उनका नाम 1 2 3 4 या KLMNOPQRST होता है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर हम वैलेंसी को एक नए सिरे से डिफाइन करेंगे, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है। ध्यान दीजिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम की किसी दूसरे के साथ में कंबाइन करने की कितनी क्षमता है, या उसकी क्या टेंडेंसी है रिएक्शन के लिए, वो किसी दूसरे से रिएक्शन करके और मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना उत्सुक है मॉलिक्यूल। ठीक है, टेंडेंसी, या फिर वो कितनी कोशिश करता है टू एक्वायर अ फुल्ली फिल्ड outermost shell with maximum of 8 electrons or octet is called its valency। ध्यान से देखिए, मैंने तीन तरह से वैलेंसी को डिफाइन किया। एक तो हो सकता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट, दूसरा टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द react and form molecules with atoms of same or different elements, अपने ही एलिमेंट के दूसरे एटम से रिएक्ट करके या दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बनाने की उसकी टेंडेंसी को भी वैलेंसी कहते हैं। इसी तरह से एक जो है एटम है, उसको वो कितनी कोशिश करता है कि उसकी बाहर वाली जो एनर्जी शेल है उसमें ऑक्टेट पूरा हो जाए, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, इसको हम कहते हैं वैलेंसी। तो एटम जो होते हैं, याद रखिए इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी रिएक्शंस आप देख रहे हैं, खासतौर पे जो केमिकल रिएक्शंस हैं, हमने पहले पढ़ा जो केमिकल चेंजेस सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शंस क्यों होती हैं? बिकॉज एवरी एटम इन दिस यूनिवर्स इज ट्राइंग टू अचीव ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल। ध्यान दीजिए, मैं रिपीट कर रही हूँ, हर एटम जो है अपनी बाहरी कक्षा में, अपने बाहरी एनर्जी लेवल में, बाहरी ऑर्बिट में 8 का नंबर, 8 इलेक्ट्रॉन का नंबर पूरा करना चाह रहा है किसी भी तरीके। कौन कौन से तरीके होते हैं? चाहे किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर करके, जैसा कि कोवेलेंट बॉन्ड में होता है, चाहे किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर, चाहे किसी को इलेक्ट्रॉन देकर। ठीक है, फिर ये 3 तरीके होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, शेयर करता है या लूज करता है। किस बात के लिए? टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट शेल। मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई भी एलिमेंट का एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स को किसी से लेता है, किसी को देता है, और या फिर अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सिर्फ इसी एक ही उसकी इंटेंशन है कि उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट माने 8 इलेक्ट्रॉन पूरी हो जाए। तो जो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, हमें डायरेक्टली इसको रीड करके हम बता देंगे भी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है। जैसे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है, इसी तरह से ये तो एक केस है कि जिसमें डायरेक्ट रीडिंग हम कर लेते हैं, बाहर वाले जो शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी होते हैं उस एलिमेंट की। लेकिन अगर एक केस ऐसा कंसिडर करिए कि अगर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में ये क्लोज टू ऑक्टेट है, ध्यान दीजिए 8 के बहुत पास वाला नंबर है, 6, 7, 8, इवन 4 भी। तो उसको देखकर वैलेंसी बताने की बजाय हम एक और आसान तरीका अपनाते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 8 हो सकते हैं। तो जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर देंगे, ठीक है, और उसकी वैलेंसी निकाल लेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का एग्जांपल ले, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन में 7 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो ऑक्सीजन के केस में 8 में से 6 माइनस करोगे 2 वैलेंसी आ गई, फ्लोरीन के केस में 8 में से 7 माइनस करोगे तो 1 आ गई उसकी वैलेंसी। तो ये तरीका हो गया दोनों की वैलेंसी पढ़ने का। इसके बाद हम आएंगे और 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर जो किसी एटम को या मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। देखिए डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले हम इन दोनों की। एटॉमिक नंबर जो है ये किसी भी एलिमेंट के एलिमेंट्स के लिए सेम होते हैं, एक तो ये बात जान लें। और जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी एटम के न्यूक्लियस में, total number of protons in the nucleus of an atom is what is called as atomic number। लेकिन एटॉमिक मास तो खाली प्रोटॉन से नहीं बनता, न्यूट्रॉन्स का भी मास होता है। तो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। एटॉमिक मास क्या, इट इज अ सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट। ठीक है, एटॉमिक मास में सम ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों होता है और एटॉमिक नंबर में खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। पहला डिफरेंस। एटॉमिक नंबर का सिंबल है कैपिटल Z, एटॉमिक मास का सिंबल है कैपिटल A। फिर जब हम एटम के लिए नोटेशन लिखते हैं, एटम को सिंबल के जरिए लिखते हैं, तो आप देखेंगे ये जो है जो Z है, जो भी एटॉमिक नंबर है, वो सिंबल के पैर के पास, शुरुआत में सिंबल से भी पहले उसके पैर के पास एज सबस्क्रिप्ट लिखा जाता है। ठीक है, और ये जो आपका एटॉमिक मास है ये उसके सर के ऊपर, सिंबल के सर के ऊपर उससे पहले लिखा जाता है सुपरस्क्रिप्ट। तो एटॉमिक नंबर तो एज क्या लिखा जाता है, एज सबस्क्रिप्ट लिखा जाता है, और एटॉमिक मास एज सुपरस्क्रिप्ट लिखा जाता है, उसके सर पे लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर जो है ये किनके कारण होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और एटॉमिक मास किसके कारण होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। लास्टली अब हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप, देखिए एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर अलग होता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि एटॉमिक नंबर जो है सारे एटम्स का एक एलिमेंट में सेम होता है, ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास के केस में ऐसा नहीं होता, वो डिफरेंट भी हो सकता है, जैसा कि अब हम आइसोटोप की डेफिनेशन में आपको बता रहे हैं। और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आइसोटोप के मिक्सचर की फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम। ठीक है, और अगर ऐसी बात है कि कोई सब्सटेंस जो आइसोटोप्स के मिक्सचर के शक्ल में मिलता है तो उसका एटॉमिक मास हम कैसे लेते हैं, जो ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्रिटियम है ना हाइड्रोजन का, इन तीनों का हम एवरेज एटॉमिक मास लेंगे, दैट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। क्यों, जैसे कि क्लोराइड के केस में 35.5, कोई जो एटॉमिक मास फ्रैक्शनल थोड़ी होते हैं, फ्रैक्शनल वो इसलिए आया है क्योंकि वो एज 2 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करता है क्लोरीन,
तो उससे क्या होता है, उनका जब हम एवरेज मास लेते हैं तो वो फ्रैक्शंस में आता है, डेसिमल में आता है। और हर आइसोटोप अपने आप में प्योर है, याद रखिए। और अगर किसी एलिमेंट के पास कोई आइसोटोप ही ना हो तो क्या हो, तो उसका एटॉमिक मास जो, सॉरी, हाँ, जो एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू जो नॉर्मल इक्वेशन है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास के बराबर होगा। अब हम पढ़ेंगे कि जो आइसोटोप्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, आइसोटोप्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि कुछ आइसोटोप्स बड़े ही हमारे हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यूरेनियम का आइसोटोप जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है, कोबाल्ट आइसोटोप कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, और आयोडीन आइसोटोप जो है क्वाइटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। अब जैसे ही आइसोटोप्स होते हैं वैसे एक आइसोबार्स भी होते हैं। ये एटम्स है जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं और मास नंबर सेम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया कैल्शियम और ऑर्गन का, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में मिल जाएंगे आपको। So with that we come to an end of this chapter. So till we meet in the next session with in chapter exercises and at end of the chapter exercises. Wish you happy reading.